اگر دو ہندو بھائی کٹگرے میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا کورٹ یا ہماری کچہری دیکھے گی کہ اس نے رشوت کتنی دی ہے، اس نے پیسہ کتنا دیا ہے، یا اس کے سر پر کون بداہیت ہے، کون منتری ہے، کون ایم ایل اے ہے۔ میرے بھائیو، اسلام نہ رشوت کو اجازت دیتا ہے اور نہ کسی کی سفارش مانگتا ہے، بلکہ انصاف، اور نہ کسی کا چہرہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا دھرم دیکھتا ہے، بلکہ انسانوں کی حیثیت سے تمام کے درمیان میں انصاف کرنا یہ ضروری ہے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں، بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخزومیہ عورت فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے جرم میں وہ پکڑی گئی۔ اس کے خلاف ثبوت بھی حاصل ہو گیا، یہ کنفرم ہو گیا کہ اس عورت نے چوری کی ہے، اور چور کی سزا اسلام کے اندر ہاتھ کاٹا جانا ہے پہنچے تک۔ اگر چور چوری کرنے کے بعد پکڑ لیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اسلامی حکومت کے اندر۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریر جائے تو کوئی کہہ دے کہ نہیں فلاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی چور کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے، یہاں ہماری حکومت جو بھی فیصلہ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام جو کہہ رہا ہے، اسلام کا جو مطالبہ ہے، اگر ایک چور چوری کرنے کے جرم میں پکڑ لیا جائے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ تو اسلام کیا کٹھورتا کا دھرم ہے؟ نہیں۔ اگر میرے بھائیو آپ کے موزم پور میں دو چور پکڑ لیے جائیں اور چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، کم سے کم 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی چوری کر کے بھاگ رہے تھے، دھر لیے گئے، پکڑ لیے گئے۔ اب اگر یہاں وہی قانون ہوتا تو اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ میرے بھائیوں، اب اس موزم پور میں جو پورے سال میں ایک چوری ہو رہی تھی، جب ایک چور کے ہاتھ کاٹ لیے گئے، اور چور کے ہاتھ خاموشی سے نہیں بلکہ علل اعلان کاٹے گئے، تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اگر ہم چوری کریں گے تو ہمارا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ہاتھ ہی دھو بیٹھیں گے، ہاتھ ہی ختم ہو جائے گا تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ میرے بھائیوں، اور جو چور اسکیم بنائے ہوئے ہیں وہ چوری نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارے یہاں جیل کے اندر گئے، 1 مہینہ رہے، 2 مہینہ رہے، 5 مہینے رہے، 5 سال رہے، چھوٹ کر کے چلے آئے، پھر موڈ بنا، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، پھر کسی کے ہاں چوری کرنے کے لیے چلو، 4-5 سال کا تو معاملہ ہے، یا رشوتیں دے کر کے چھوٹ جائیں گے، معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو حکم دیا وہ یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اعلان۔ اور اچانک ایک بڑے گھرانے کی عورت، مخزوم، قبیلہ مخزومیہ، قبیلہ مخزوم کی ایک عورت فاطمہ مخزومیہ چوری کرنے کے جرم میں پکڑ لی جاتی ہے۔ گواہی بھی مل گئی، بلا گواہی کے اور سچائی کے ساتھ میں گواہی، ثبوت فراہم کر لیے گئے، ثبوت پراپت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ چوری کرنے کے جرم میں کاٹا جائے گا۔ 1.5 دن کا بھی اعلان کر دیا گیا، فلاں دن اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ قبیلہ مخزوم کے تمام سربراہ لوگ، بڑے بڑے لوگ، خاندانی طاقت و قوت رکھنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بڑے خاندان کی لڑکی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، چوری کرنے کے جرم میں پکڑی گئی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمارا تو نام بڑی دور دور تک ہے، ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اگر اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر خواتین میری آواز کو سمجھ رہی ہیں تو یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ چوری کرنے کے معاملے میں عام طور پر چھوٹی موٹی
चीज जो है चुरा लेती हैं और अकल भी नहीं होती है उनमें, नाक़िसुल अकल भी हैं औरतें। हमारे यहाँ चंद औरतें बैठी हुई थी, अचानक एक औरत ने एक मोबाइल देखा कि शायद किसी का नहीं लग रहा है ये, या जिसका है वो शायद भूले हुए, उसने उठा करके अपने कपड़ों में रख लिया। अब थोड़ी देर के बाद एक औरत मोबाइल तलाश करते हुए, क्या किसी ने मेरा मोबाइल लिया है? कोई नहीं बता रहा है। और उन्हीं औरतों में जो औरतें बैठी हुई है उसी के पास मोबाइल है। सब औरतों ने इनकार कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने दूसरा मोबाइल उठाया और नंबर डायल किया तो वही औरत बैठी हुई उसी के पास बोल रहा है। तो वो कह रहे हैं ये कैसे धोखे में रख गया, ये शायद धोखे में रख गया, मैंने जानबूझ के नहीं रखा। अरे धोखे में रखा था तो कम से कम चेक कर लेती, धोखे में ही रखा गया था तो बता देती हाँ ये मोबाइल तो है, ये है। या इस तरीके से खाना खाने जाएंगी तो बहुत सारा खाना भी कभी कभी जो है छुपा करके ले आती हैं, या बहुत सारी चीजें जो है ये खवातीन या जेवरात अचानक में ही गायब कर देती हैं औरतें। मेरी माँ और बहनों, ये एक जुर्म है और ये हुकूकुल इबाद है। अगर किसी का कोई सामान हम चोरी करके रखते हैं तो ये बड़ा जुर्म है, और अगर ये चोरी साबित होती है तो इस्लाम का कानून ये है कि उसका हाथ काटा जाएगा। तो स्कीमें बन रही है। मखजूम के लोग, बड़े बड़े लोग जमा हुए, जमा होने के बाद आपस में मशवरा किया, अगर करोड़ों की तादाद में रिश्वत देना पड़ जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तावान दे देंगे। हम जुर्माना, हर जाना, फाइन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मखजूमी औरत का हाथ कटवाने के लिए तैयार नहीं है। स्कीम बनाई। स्कीम बनाने के बाद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों के पास आ गए, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माओं के पास पहुंच गए और पर्दे के पीछे से रिक्वेस्ट करने लगे, गुजारिश करने लगे, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों, तुम्हारी बात रसूलुल्लाह मानेंगे, लिहाजा हमारी तरफ से सिफारिश कर दो, इस औरत को माफ कर दिया जाए, इसे क्षमा कर दिया जाए, और इसके बदले में जितना तावान, जितना फाइन, जितना जुर्माना अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेने के लिए तैयार हो जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे खानदान की इस औरत के हाथ को बख्श दिया जाए, हाथ ना काटा जाए। उम्महातुल मोमिनीन ने इनकार कर दिया। अबे हमारे बस की बात नहीं है, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, हम नबी के पास नहीं जाएंगे, तुम अपने तौर पर जाओ, बात रखो। यहां पर भी दाल नहीं गली, बात उनकी यहां पर नहीं बनी, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहियते गुलाम थे ज़ैद, जिनके बेटे उसामा, जाहिर बात है कि जब आदमी बाप से मोहब्बत करता है तो बेटे से भी मोहब्बत करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि ज़ैद से मोहब्बत करते थे तो उनके बेटे से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, लिहाजा उसामा के पास आ गए। कहा उसामा, रसूलुल्लाह तुम्हारी बात बहुत मानते हैं, ऐसा करो तुम गुजारिश कर दो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो जितना जुर्माना लेना चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे खानदान की औरत का हाथ ना काटा जाए। देखा बहुत परेशान है उसामा, बड़े रहम दिल थे, इनकी बात सुनी और सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहने लगे, या रसूलल्लाह, फातिमा मखजूमिया ने जो चोरी की है उसके खानदान के लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो जुर्माना और तावान देने के लिए तैयार है, लेकिन उस औरत का हाथ ना काटा जाए। अल्लाह के नबी माफ कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा कहते हैं उसामा की जुबान से जब ये अल्फाज निकले, फ़ग़ज़िबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आपका
चेहरा टिमटिमा उठा, अल्लाह के नबी नाराज हो गए, आंख का चेहरा नाराजगी की बिना पर सुर्ख हो गया। अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, आपका जब गुस्सा होते थे तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाया करता था, आप नाराज हो गए। दीन के मामले में समझौता नहीं हो सकता है। उसामा बहुत मोहब्बत करते हैं हम, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, या उसामा अतश्फु फी हद मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? जो अल्लाह ने हद नाज़िल की है उस हद को खत्म करने के लिए सिफारिश कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने उसामा को डांट दिया, और मालूम है क्या कहा? आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, दुनिया वालों को ये मैसेज दिया, और मक्का के वो लोग या मदीना के अंदर जो बनु मखजूम के लोग थे, जो कबीले मखजूम के लोग थे, उन्हें आपने मैसेज दिया। आपने फरमाया, क्या फरमाया? वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लौ अल्ला फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस जात की कसम, अल्लाह का हवाला देकर के इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह की कसम खा करके आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मुहम्मद रसूलुल्लाह की जान है। लोगों सुनो, ये तो बनु मखजूम की औरत फातिमा है। अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह की अपनी बेटी, अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह की लगते जिगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती, लक़तअतु यदहा, तो मैं उसके भी हाथ को काट देता। ये है इस्लाम की तालीम। फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा। मेरे भाइयों, इमाम कायनात ने अपनी लगते जिगर, अपनी नूरे नजर के बारे में फरमा दिया। लोगों सुनो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की लगते जिगर फातिमा, नबी की चहेती बेटी, नबी की लगते जिगर, अगर वो भी चोरी कर लेती, तो मैं इस हद को कायम करने में जर्रा बराबर भी दरेग न करता, बल्कि अपनी बेटी के हाथ को भी काट देता। अगर चोरी करती और चोरी का जुर्म साबित हो जाता तो मैं उसके हाथ को काट देता, उसके हाथ को मैं नहीं छोड़ता। ये है इस्लाम की तालीम, और ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। सिफारिश से मसले बदलते नहीं हैं, और इन मामलों में सिफारिश कबूल नहीं की जाती है। यहां तो अगर अभी पुलिस वाले दो चोर को पकड़ के ले जाएं और रंगे हाथों पकड़ लिया हो, या कातिल हो और रंगे हाथों पकड़ लिया जाए, और अगर एक एमएलए का फोन पहुंच गया, हाँ भाई साहब दरोगा जी फला साहब को पकड़ करके लाए हो, अरेस्ट करके लाए हो, 5 मिनट के दरमियान में उसको उसी के घर छोड़ के आ जाओ, छोड़ के आ जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं छोड़े, अच्छा जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। अब गया एक आदमी 1 लाख रुपए जेब में डाले, 50,000 डाले, और चुपके से दरोगा जी के हाथ में पकड़ाए, चलो ठीक है ले जाओ, सब खत्म, सारे गुनाह माफ, सब जुर्म हरण हो गया, कोई मामला नहीं है। अपराध ऐसे ही तो बढ़ते हैं जब अपराध को संभालने वाले, मुल्क की तामीर और तरक्की करने वाले, मुल्क के संरक्षक अगर वही ये काम करने लगे, मुजरिमीन की सिफारिश करने लगे, तो जुर्म तो ऐसे ही पनपते हैं। अगर अल्लाह के नबी उस औरत को माफ कर देते तो दुनिया रहती दुनिया तक के लिए एक तारीख बन जाती, एक हिस्ट्री बन जाती
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया था, माफ किया जाता रहता और वो जुर्म बढ़ते रहते। मेरे भाइयों, आज सऊदी अरबिया के अंदर आज भी चोरी करने के जुर्म में हाथ काटा जाता है, चाहे वो बादशाह का बेटा ही क्यों ना चोरी करे, चाहे वो गरीब तबके का ही कोई आदमी चोरी क्यों ना करे, लेकिन उसका हाथ काटा जाएगा। अब देखो, सुनार सोने की दुकान, यहां अगर कहो भाई साहब जरा दुकानदार हो लेकिन नमाज पढ़ लिया करो, अरे मौलाना साहब आप तो इसी लाइन में है, नमाजें पढ़ लेंगे, लेकिन हम अपनी दुकान का क्या करें, अगर खोल करके जाएं तो अभी लूट लेगा आदमी। कश्मीर से एक गाड़ी आ रही थी सेब की, पंजाब के इर्द गिर्द जाकर के पलट जाती है। लोगों ने क्या किया, सेब की पेटियां निकाल निकाल करके कंधों पे रख रख करके ले गए। बेचारा जिसकी गाड़ी पलटी, एक नुकसान ये, और प्लस जो पेटियां सेब की हैं वो अपने कंधों पे रख रख करके लोग ले लेके जा रहे हैं। वीडियो बन रहा है, न किसी को कपड़े का होश है न कुछ और है, बस मिलना चाहिए। ये हमारे यहाँ के हालात हैं। मेरे भाइयों, सऊदीया के अंदर अगर एक सोने की दुकान भी खुली हुई है, नमाज का टाइम हो जाए शटर ऐसे नीचा करते हैं और नमाज पढ़ करके चले आते हैं। यहाँ शटर बंद होता है, ठंडी रातों में औरतें चोरी करने के लिए घुल जाती हैं। अभी 1-2 साल पहले दिल्ली के अंदर शटर के पास बहुत सारे लोग सो जाते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं, लिहाफ लेकर के वहीं लेट गई। अब कौन समझेगा कि ये कोई चोरी कर रहा है, उसी लिहाफ में से तालों को काटा और काटने के बाद अंदर घुसी और चोरी कर ली। मेरे भाइयों, अगर सिफारिशें, अगर रिश्वतें, अगर ये तमाम चीजें रहीं तो जो जुर्म है वो खत्म नहीं किए जा सकते हैं। आइए दूसरी आयत की तरफ चलते हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 135, 135। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। ये कितनी प्यारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही है। ऐ ईमान वालों, इंसाफ को कायम करने वाले बनो और अल्लाह की रजा के लिए सच्ची गवाही देने वाले बनो। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, अगरचे गवाही तुम्हारी अपने जात के खिलाफ क्यों ना पड़ जाए। कितनी गहरी बात है, कुरान है ये। गवाही सच्ची देनी है और इंसाफ को कायम करना है। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम्हारी अपनी जात के खिलाफ ही क्यों ना पड़ रहा हो। अभी आपके पास पड़ोस में एक लड़का और एक दूसरे घर का लड़का लड़ जाए, मान लो सपोज डेट, आप मान ले एक अब्दुल्ला लड़ गया, एक अब्दुल रहमान लड़ गया। अब्दुल्ला के बाप ने देखा कि मेरे बेटे ने डंडा उठा करके उसके सर पे मारा है, देख लिया, और सामने वाले अब्दुल रहमान का सर फट भी गया। पुलिस आ गई, ले गई पकड़ करके। अब गवाही में किसी ने कह दिया, भाई इनके अब्बा से ही पूछ लो, इनके वालिद साहब से पूछ लो, इस अब्दुल्ला ने डंडा मारा है जिससे इसका सर फूटा है। इसके अब्बा भी खड़े हुए थे। अब अब्बा जी वहां पहुंचेंगे और कहेंगे, हाँ, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है। दे देगा कोई गवाही? अपने ईमान का जरा जायजा लो, कौन है अपने खिलाफ गवाही देने की बात आ जाए तो गवाही दे दे, अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने का मामला जाए तो दे दे। लेकिन कुरान कहता है, अगर ईमान वाले बनना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, तो गवाही देते वक्त गर्चे तुम्हारी अपनी जात के खिलाफ भी गवाही क्यों ना पड़ जाए, गवाही देनी पड़ेगी आपको। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया, अविल वालिदैन, वालिदैन के खिलाफ
अल्लाह ने जब इताअत और फर्मा बरदारी और अपनी इबादत की बात कही तो माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी को अपने बाद जिक्र फरमाया, इतना दर्जा दिया माँ बाप को। लेकिन यहां क्या फरमाया, गवाही देने में अगर तुम्हारे खिलाफ गवाही पड़ रही हो तब भी गवाही सच्ची देना। अगर तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ, तुम्हारे माता और पिता के खिलाफ भी गवाही पड़ रही हो तो तुम अपने माँ बाप के खिलाफ भी गवाही दे देना। वल अक़रबीन, और तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ पड़ रही हो उनके खिलाफ भी गवाही तुम्हें सच्ची ही देना पड़ेगी। फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह इन दोनों से ज्यादा करीब है। इयकुल फकीरन इयकुल गनीयन फकीरा, अगरचे वो गवाही मालदारों के खिलाफ पड़ रही हो, अगरचे वो गवाही किसी गरीब के खिलाफ क्यों ना पड़ रही हो। माँ बाप के खिलाफ नहीं दे पाएगा आदमी गवाही, करीबी रिश्तेदारों के अगर उनसे इत्तेफाक है और अगर सच्ची गवाही देने की बात आ जाए और रिश्तेदार नाहक है तो गवाही आदमी नहीं दे पाएगा। या आज इसके विपरीत ले लें, अगर एक हिंदू और मुसलमान का मसला आ जाए तो आज न मुसलमान हिंदू के मुवाफिक गवाही दे पाएगा, न हिंदू मुसलमान के मुवाफिक गवाही दे पाएगा, बल्कि इसके उल्टा सोचेंगे। जबकि इस्लाम इसके खिलाफ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो हक पर है उसी के बारे में गवाही देनी पड़ेगी, हाँ ये हक है, और जो नाहक है उसके बारे में वैसे ही गवाही दी जाएगी। न अपना देखा जाएगा, न गैर देखा जाएगा, न दोस्त देखा जाएगा, न दुश्मन देखा जाएगा, न मालदार देखा जाएगा, न गरीब देखा जाएगा, बल्कि इंसाफ के साथ में और सच्ची गवाही के साथ में बात की जाएगी। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम का मामला है। और जब ऐसा करोगे तो मुआशरा अमन वाला बनेगा, मुआशरा और सोसाइटी मुस्तहकम हो जाएगी। अगर एक हिंदू और मुसलमान का मामला हो जाए और मुसलमान नाहक हो, दूसरे मुसलमान को गवाही देनी पड़े और वो गवाही मुसलमान के खिलाफ दे दे कि वाकई ये मुसलमान नाहक है, बताओ एक हिंदू भाई इस्लाम धर्म से प्यार करेगा या नहीं करेगा? इस्लाम धर्म से मोहब्बत करेगा, वो मुसलमान से मोहब्बत करेगा कि वाकई मुसलमान वो होते हैं कि बात अगरचे उसके भाई के खिलाफ क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन वो वही बात कहता है जो सच्ची बात होती है। ये है इस्लाम का पैगाम। और अल्लाह ने आगे ये भी फरमा दिया, फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, ऐ लोगो इंसाफ करने में ख्वाहिशात की पैरवी मत करना। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है इस ताल्लुक से मत करना, बल्कि सच बात क्या है वो करना है। मेरे भाइयों, कोर्ट कचहरी के अंदर हो, पैसा दे दिया जाए तो फैसला उसके हक में होगा जिसने पैसा दिया है। कोर्ट और कचहरी के अंदर फैसला जजमेंट उस आदमी के ताल्लुक से होगा जिसके लिए सिफारिश ज्यादा से ज्यादा ऊंची और बड़ी होगी। ये हो रहा है। इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना। इस दौर में इंसाफ की कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इंसाफ को ढूंढा जाए तो इंसाफ का पता नहीं है। इंसाफ, अदल, न्याय तो दूर दूर तक भी पता नहीं है। बहुत बाद में जाकर के सजाएं सुनाई जाती हैं, फला आदमी बरी है, फला आदमी बरी है। मेरे भाइयों, बिना सबूतों के साथ में अगर तुमने किसी आदमी को 10-10 साल जेल में रखा, बताओ उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? दुनिया के अंदर भी परेशानी तुम्हें उठानी पड़ेगी और कल क़यामत के दिन क्या होगा, इंशाअल्लाह वो बातें भी मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। तो इंसाफ और सच्ची गवाही देना, गरचे अपनों के खिलाफ ही क्यों नहीं जा रही हो। आइए जरा देखें
एक वाकया बड़ा मशहूर वाकया है और आपने शायद सुना भी होगा। अमर इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हो फातह मिस्र हैं और मिस्र के गवर्नर भी हैं, अहद फारूकी है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत है। काहिरा के अंदर घोड़ों की दौड़ होती है, घोड़ों की रेस होती है। जिसका घोड़ा आगे निकलेगा वो उसकी जीत मानी जाएगी और उसे सम्मानित किया जाएगा, उसे प्राइज दिया जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हाजिर हुए। उसी रेस में फातह मिस्र और मिस्र के गवर्नर हजरत अमर इब्ने आस का बेटा भी अपना घोड़ा लेकर के पहुंच जाता है। रेस शुरू होती है। एक आदमी अपने घोड़े को दौड़ा रहा है। हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा भी अपने घोड़े को दौड़ा रहा है। दौड़ाते दौड़ाते दूसरे आदमी का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ने लगा, यहां तक कि दूसरा आदमी अपने घोड़े को भगाते हुए आगे निकल जाता है और उस रेस के अंदर जीत जाता है। उसके जीतने का ऐलान कर दिया जाता है। फला आदमी इस दौड़ में, घुड़दौड़ के अंदर सक्सेस हो चुका है, कामयाब हो चुका है। ऐलान हो गया, इनाम भी दे दिया गया। अमर इब्ने आस का बेटा उस आदमी को बुलाता है दूसरी जगह, दूसरी तरफ बुला करके लेके जाता है और लेके जाने के बाद कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं है, जैसे आज अगर किसी विधायक का बेटा हो, अगर कुछ बोल दो तो तुम्हें मालूम नहीं है किसका बेटा हूं मैं, जानते नहीं हो, बड़ा अकड़ के बोलेगा, आसमान पे सर होगा, आगे ऊपर को एक इधर एक इधर, अगर जानते नहीं हो किसका बेटा हूं मैं। तो हमारे इब्ने आस के बेटे के दिल में भी कुछ ऐसी बात आ गई। कहने लगा, मालूम नहीं है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, जब मेरा घोड़ा दौड़ रहा था तो तुमने अपने घोड़े को तेज दौड़ा दिया, तुम्हें पीछे रखना चाहिए था। और अपने गुर्रे को निकाला, अपने कोड़े को निकाला, निकालने के बाद उसकी पीठ पर कई दे मारे, कई मार दिए। जब मारा तो वो लड़का ईसाई था। देखिए जरा गौर करना, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला वो लड़का, उसके दिमाग में आया कि मुसलमान इंसाफ परवर होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं। वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पहुंच जाता है। अपना कज़िया लेकर के, अपना मैटर लेकर के, अपना मामला लेकर के हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के दरबार में पहुंच जाता है। शिकायत की, या अय्युहल अमीर कद ज़लम इब्नुल अमीर, ऐ अमीर मिस्र के अंदर जो गवर्नर है, जो हाकिम वक्त है, अमर इब्ने आस उनके बेटे ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं इंसाफ लेने के लिए आपके यहां पहुंचा हूं। मैंने सुना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी ये इंसाफ को पसंद करते हैं, ये इंसाफ करते हैं। कहा ठीक है, तहकीक करते हैं, तुम बैठो, और हम जब तक तहकीक न कर लें उस वक्त तक तुम्हें जाना नहीं है। अगर तहकीक करने के बाद गलती अमर इब्ने आस के बेटे की निकली तो उसको अभी सजा दी जाएगी, सजा तुम्हारे सामने दी जाएगी, तुम यहीं पर बैठो। उस वक्त तक तुम्हें नहीं जाना है जब तक कि मैं उनको सजा न दिला दूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद, एक पैगाम्बर को भेजा, तेज रफ्तार घोड़ा देकर के कायरा के लिए, मिस्र के लिए रवाना कर दिया। जाओ अमीरुल मोमिनीन को, अमर इब्ने
और साथ में उनके बेटे को भी लेकर के आना, उन्हें बुला करके लेकर के आ जाओ। कासिद चला, पहुंच गया। जाने के बाद जो रुक्का दिया गया था, जो लेटर दिया गया था, वो लेटर अमर इब्ने आस के हवाले किया गया। अमर इब्ने आस ने देखा कि हजरत उमर फारूक याद कर रहे हैं और बेटे के साथ याद कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या मामला है। बहरहाल फौरन 2 घोड़ों को तैयार किया और तैयार करने के बाद एक पर अपने बेटे को बिठाला और दूसरे पर खुद बैठे और फौरन रवाना होते हैं और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह, अय अमीरुल मोमिनीन, अय उमर फारूक, बताइए मामला क्या है, क्यों याद किया है, वजह क्या है, मैटर क्या है? का मैटर ऐसे नहीं, चंद लोगों को पहले हाजिर कर लिया जाए। लोगों को जमा किया गया। जमा करने के बाद हजरत उमर फारूक ने अपनी अदालत के अंदर, कटघरे के अंदर, एक तरफ अमीर, एक तरफ हाकिम अमर इब्ने आस को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ उनके बेटे को खड़ा कर दिया, तीसरी तरफ ईसाई लड़के को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद कहने लगे, ओ ईसाई लड़के, बताओ तुम्हारे साथ में क्या मामला हुआ है, या इनके बाप के साथ में बताओ, इनके बाप के सामने उस बयान को दोहराओ। वो लड़का खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने अपनी बात को दोहराना शुरू किया और जो मामला हुआ था, जो भी मैंने आपको सुनाया, पूरा मामला, पूरा मैटर उस लड़के ने बताया और कहा कि जब मैं उसमें जीत गया तो तुम्हारे बेटे ने मेरे ऊपर कोड़े बरसा दिए और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझसे आगे निकल गए। कोड़े से इस आदमी ने मेरी पिटाई लगाई है, मैं इंसाफ चाहता हूं। जरा गौर करो, यहां अमीरुल मोमिनीन, जिसको आज हम इस दौर की भाषा में मंत्री कह सकते हैं, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, और उधर मंत्री हाकिम है, वो काहिरा के अंदर हैं, मिस्र के गवर्नर हैं और पूरे खित्ते पर हुकूमत हजरत उमर फारूक की है। कितनी बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री और मंत्री और उनका बेटा। उस वाक्य को भी दोहरा लो, किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ाई गई थी, उस वाक्य को भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मीडिया का दौर है, सब कुछ मालूम होगा किस तरीके से मैटर कहां से कहां दबा करके खत्म कर दिया गया था, कुछ पता नहीं चला। मेरे भाइयों, यहां मंत्री, मुख्यमंत्री सब मौजूद हैं, हाकिम हुक्मरान मौजूद हैं और मैटर गवर्नर के बेटे का है, लड़का दूसरे धर्म का है, यानी ईसाई लड़का है। हजरत अमर इब्ने आस ने बात को सुना, सुनने के बाद अपने कोड़े को निकाला, कोड़े को निकालने के बाद अपने कोड़े को हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के हाथ में दे दिया और देने के बाद कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जितने कोड़े मेरे बेटे ने इस ईसाई लड़के के लगाए हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे कोड़े के जरिया मेरे बेटे को सजा दे दीजिए। ये है इंसाफ। गौर करें, क्या कह देते नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, इतना तो नहीं मारा होगा, ऐसा तो नहीं, क्या 70 बातें बनाई जाती हैं, या तुम झूठ बोल रहे हो, गवाह लाओ, फला लाओ। लेकिन जब उस आदमी ने कहा तो बेटा भी खामोश हो गया, बेटे ने सर झुका लिया और हामी भर दी कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। लोग झूठ बोल जाते हैं, बेटा मोमिन है, वो झूठ नहीं बोला, कहा मुझसे ये गलती हुई है। बाप ने अपने कोड़े को दिया अमीरुल मोमिनीन के हाथ में। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने कहा, ऐ अमर इब्ने आस, ये जो कोड़ा यहां मुझे दे रहे हो, हक तो ये था कि ये कोड़ा मिस्र के अंदर ही रह करके तुम्हारे बेटे की पीठ पर पड़ा होता, लेकिन आज जब मामला मेरे पास तक आया है तो कोड़ा मेरा होगा और इस ईसाई का हाथ होगा, इस ईसाई लड़के का हाथ होगा। ये अपने हाथ से उतने कोड़े तुम्हारे बेटे की पीठ पर मारेगा जितने कोड़े इसने इसके मारे हैं।
ये इंसाफ कहाँ मिल सकता है? इस्लामी अदालत में मिल सकता है, ईमान वालों में मिल सकता है। मेरे भाइयों, तारीख गवाह है, लोगों ने देखा, मजमे ने देखा, हजरत उमर फारूक ने अपना कोड़ा ईसाई के हाथ में दे दिया और देने के बाद उस ईसाई ने उस कोड़े को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद उस अमर इब्न आस के बेटे की पीठ पर मारना शुरू किए और उतने ही जोर से मारा जितने जोर से उसने मारा था। जितने कोड़े अमीरुल मोमिनीन के बेटे ने मारे थे उतने ही कोड़े उस ईसाई लड़के ने मार लिए। मारे, सारे मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ है। ये क्या मामला हो रहा है? अजीब मैटर है ये। लेकिन मेरे भाइयों, कोड़ा, लाश कोड़ा ईसाई लड़के ने अमर इब्न आस के बेटे की पीठ पर मारा। मारने के बाद अपने कोड़े को जमीन पर फेंक दिया और फेंकने के बाद कहने लगे, वो लड़का कहने लगा, आए उमर फारूक, आए अमर इब्न आस, मैंने सुना था मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी इंसाफ परवर होते हैं, इंसाफ करते हैं। आज मैंने प्रैक्टिकली अपनी नजरों के सामने देख लिया है, मैंने देख लिया। और उसके बाद जुबान खुलती है, क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके वो ईसाई मुसलमान हो जाता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम के पैगाम ही तो थे। आज लोग कहते हैं घर वापसी, घर वापसी, लोग पलट करके हिंदुइज्म में आ जाएं। मेरे भाइयों, जब इस्लाम को समझ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो गए तो वो वापस नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारी गलत सोच है। घर वापसी ये कैसे हो सकता है? जिसने इस्लाम को समझ लिया, जिसने इस्लाम की शिक्षा और तालीमात को समझ लिया, मेरे भाई, जो लाख लोग प्रतिबंध लगाए और लोग पैगाम भी ना दें, लेकिन वो कुरान को पढ़ करके, हदीस को पढ़ करके, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री और तारीख को पढ़ करके आज भी लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और यही वो शिक्षा थी, यही वो तालीम थी जिसको लेकर के सहाबे किराम इधर हिंदुस्तान के अंदर आए थे। जब हमारे मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था, आजादी से पहले जब लोग यहाँ पर आए थे, तो इनको ही देख करके, उनके अमल को देख करके, उनकी नाप और तोल को देख करके लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। मेरे भाइयों, ये तालीम, ये शिक्षा इस्लाम के अंदर मिलेगी और ये इंसाफ